Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we will discuss the exercise given behind the chapter 7 of class 6 science NCERT textbook, that is getting to know the plants. लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने चैप्टर 7 को फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि अगर आप चैप्टर अच्छे से समझेंगे तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स। Now question number 1 says correct the following statements and rewrite them. नीचे कुछ statements दिए गए हैं, आपको उन्हें correct करना है और फिर corrected statements को लिखना है। So the first statement is stem absorbs water and mineral from the soil. तो statement कहता है कि stem absorb करता है water और mineral को from soil से। तो absorb करने का काम stem का नहीं होता, ये roots का होता है। So the corrected statement will be root absorbs water and minerals from the soil. Now next statement is leaves hold the plant upright. Statement कहता है कि leaves क्या करती हैं, plant को सीधा खड़ा रखने में मदद करती हैं। तो ये leaves का function नहीं होता है, ये stem का function होता है। So the corrected statement will be stem holds the plant upright. Now next statement is root conducts water to the leaves. तो statement कहता है कि root क्या करती है, water को carry करती है leaves तक। तो root का जो function होता है वो तो absorb करना होता है water, ना कि conduct करना होता है। तो conduction of water to the leaves is the function of stem. So the corrected statement will be stem conducts water to the leaves. Stem conduct करता है। Another statement is the number of petals and sepals in a flower is always equal. तो statement कहता है कि जो petals और sepals का number होता है एक flower में वो हमेशा equal होता है। तो हमेशा equal नहीं होता, it may be equal and it may not be equal. So the corrected statement will be the number of petals and sepals in a flower may not be always equal. हमेशा equal हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। Now the next statement is if the sepals of a flower are joined together then its petals are also joined together. तो statement कहता है कि flowers के sepals क्या हैं, वो joined हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसके petals भी joined होंगे। तो ये एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर सेपल्स जॉइंट होते हैं तो पेटल्स सेपरेट होते हैं। सो द करेक्टेड स्टेटमेंट विल बी इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन इट्स पेटल्स आर सेपरेट। उसके पेटल्स सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। Now the last statement is if the petals of a flower are joined together then the pistil is joined to petals. तो statement कहता है कि अगर petals जो है flower के वो जुड़े हुए हैं तो pistil भी joined होगा petal से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, pistil join हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। तो इसका corrected statement होगा if the petals of a flower are joined together then pistil may or may not be joined to the petals. वो join हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। Now question number 2 says that you have to draw the diagram of a leaf, a taproot and a flower. So here we have drawn the diagram of a leaf. Leaf consists of a broad green color part जिसको हम लैमिना कहते हैं। लैमिना के नीचे एक थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको पिटियोल कहते हैं। पिटियोल क्या करता है, लीफ को अटैच करता है स्टेम से। अगर लीफ के एकदम मिडिल में देखा जाए तो एक प्रोमिनेंट सी लाइन दिखाई देती है जिसको हम मिडरिब कहते हैं, और मिडरिब के दोनों तरफ फाइन लाइंस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम वेन्स कहते हैं। Now this is the diagram for the taproot. Taproot consists of this thick root which is known as main root या फिर primary root कहते हैं, और main root के दोनों साइड में छोटी छोटी branching होती है जिसको हम lateral roots कहते हैं। Now this is the diagram of a flower and if we start from the outermost part तो यहाँ पर green leafy structures होते हैं जिनको हम sepals कहते हैं। sepals के अंदर की तरफ prominent color
कलरफुल लीफी पार्ट होता है जिसको हम पेटल्स कहते हैं, और पेटल्स के इनर सर्कल में देयर आर थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्टेमेन कहते हैं, और सेंटर में प्रेजेंट होता है पिस्टिल। Now question number 3 says, can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long and a weak stem? Write its name and in which category would you classify it? तो आपको एक प्लांट ढूंढना है अपने घर में या फिर नेबर के घर में which has a long and a weak stem, जिसका स्टेम क्या हो, लंबा भी हो और वीक भी हो, ठीक है। Then you have to write its name and in which category, और किस कैटेगरी में आप उसको क्लासीफाई करेंगे। तो हम सभी के घर में एक प्लांट बहुत कॉमन पाया जाता है जिसे हम मनी प्लांट कहते हैं। सो यस, इट इज़ मनी प्लांट। अगर हम उसके स्टेम की बात करें तो स्टेम उसका पतला होता है और वीक होता है, लेकिन अगर हम मनी प्लांट को कोई सपोर्ट देते हैं, जैसे एक फेंस का सपोर्ट देते हैं, स्टिक का सपोर्ट देते हैं, तो मनी प्लांट क्या करता है, उसके ऊपर क्लाइंब कर जाता है एंड इट्स कीप्स ऑन ग्रोइंग। सो वी कैन क्लासीफाई मनी प्लांट एज अ क्लाइंबर। Now question number 4, what is the function of a stem in a plant? Stem का क्या function होता है एक plant के अंदर? तो ये हमने chapter में पढ़ा था कि function of a stem in a plant are, first is stem conducts water. Stem क्या करता है, water को conduct करता है, कहाँ से, root से, leaves में and other parts of plant। किसकी वजह से, क्योंकि स्टेम के अंदर स्पेशल वेसल्स होते हैं जिनको हम जाइलम कहते हैं। सो इट इज़ बेसिकली द जाइलम विच कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। Then next function is stem conducts food. Stem water तो conduct करता ही है लेकिन साथ में food भी conduct करता है, कहाँ से, from leaves से to roots and the other parts of plant। और किसकी मदद से करता है, stem के अंदर दूसरे special vessels होते हैं जिनको हम phloem कहते हैं। So these phloems they carry food from the leaves to the roots and the other parts of plant। Then the next function is stem holds the plant upright, और stem मदद करता है plant की उसको सीधा खड़ा रखने में। Now question number 5, Which of the following leaves have the reticulate venation? नीचे कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस प्लांट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो सबसे पहले रेटिकुलेट वेनेशन को समझते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, अगर मिडरिब के दोनों तरफ वेन का अरेंजमेंट जो है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो हम कहते हैं कि उस लीव्स का जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट वेनेशन है। तो अब हम देखते हैं कि वीट की जो लीफ होती है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता, पैरेलल वेनेशन होता है। देन तुलसी लीफ, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। देन मेज एंड ग्रास दे बोथ हैव पैरेलल वेनेशन। कोरिएंडर, जिसको हम धनिया भी कहते हैं, उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और चाइना रोज के अंदर भी रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो आंसर क्या होगा, तुलसी, कोरिएंडर, चाइना रोज हैव द रेटिकुलेट वेनेशन। Now question number 6, if a plant has a fibrous root, what type of venation do its leaves likely to have? एक प्लांट है जिसकी fibrous root है, तो क्या हम बता सकते हैं कि उस प्लांट की लीव्स का वेनेशन क्या होगा? तो यस, डेफिनेटली बता सकते हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टाइप ऑफ वेनेशन एंड द टाइप्स ऑफ रूट। अगर हमें प्लांट के वेनेशन के बारे में पता लग जाए तो हम उसकी रूट्स के बारे में बता सकते हैं, और रूट्स का पता लग जाए तो हम उसकी वेनेशन के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लांट की फाइब्रस रूट्स हैं तो लीव्स में वेनेशन क्या होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। और पैरेलल वेनेशन में क्या होती हैं, जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। Now question number 7, if a plant has the leaves with the reticulate venation, what kind of roots will it have? यहाँ पर प्लांट की लीव्स के वेनेशन के बारे में पता है कि रेटिकुलेट वेनेशन है, तो अब आपको बताना है कि उसकी रूट्स किस तरह की होंगी। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अगर प्लांट की लीव्स का रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो रूट्स टैप रूट होंगी, और टैप रूट इस तरह की दिखाई देती है। Now question number 8,
it says that is it possible for you to find out whether a plant has a tap root or the fibrous roots by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper। तो आपको एक शीट ऑफ पेपर पे लीफ का इम्प्रेशन दिया गया है, तो आपको उस इम्प्रेशन को देख के बताना है कि क्या उस प्लांट की रूट टैप रूट होंगी या फाइब्रस रूट होंगी। तो जब भी कभी हमें लीफ का इम्प्रेशन दिया जाता है एक पेपर के ऊपर, तो हम उसमें उसकी शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका टाइप ऑफ विनेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब हम इंप्रेशन से टाइप ऑफ विनेशन पता लगा लेंगे तो हम उसकी रूट्स के बारे में भी बता सकते हैं। सो यस, by looking at the impression of the leaf on a sheet of paper, we can tell about the types of root a plant will have। तो अगर लीव्स में रेटिकुलेट विनेशन होगा तो प्लांट विल हैव टैप रूट, और अगर विनेशन पैरेलल विनेशन है तो प्लांट्स की रूट होंगी फाइब्रस रूट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। आपको फ्लावर्स के पार्ट के नाम लिखने हैं। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने फ्लावर का, ताकि हम उसके पार्ट्स इजीली लिख सकें। तो जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का वो लीफी होता है, ग्रीन कलर का होता है, उसे हम सेपल्स कहते हैं। सो फर्स्ट पार्ट विल बी सेपल। अगर हम सेपल्स के अंदर मूव करते हैं तो हमें कलर्ड लीफी पार्ट दिखाई देता है जिनको हम पेटल्स कहते हैं। सो अनदर पार्ट विल बी पेटल्स। अगर हम पेटल्स के इनर सर्कल में देखते हैं तो हमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको हम स्टेमन कहते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट विल बी स्टेमन, और एकदम सेंटर में जो फ्लावर का पार्ट होता है उसे हम पिस्टल कहते हैं। सो द लास्ट पार्ट विल बी पिस्टल। हेंस the answer will be parts of the flower are sepals, petals, stamen and pistil। Now question number 10, from the following plants which of them have the flowers। नीचे कुछ प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, आपको उन्हें बताना है कि उनमें से किसमें फ्लावर आते हैं। तो प्लांट्स हैं ग्रास, मेज, वीट, चिली, टमेटो, तुलसी, पीपल, सीशम, बैनियन, मैंगो, जामुन, गुआवा, pomegranate, papaya, banana, lemon, sugarcane, potato and groundnut। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं वो कॉमनली अवेलेबल हैं, हमारे देखे हुए हैं, तो हम इजीली बता सकते हैं। सो आउट ऑफ दीज प्लांट्स ग्रास, sugarcane and groundnut do not have flowers, और बाकी सब में फ्लावर्स आते हैं। सो आंसर विल बी plants having flowers are maize, wheat, chili, tomato, tulsi, people, sesame, banyan, mango, jamun, guava, pomegranate, papaya, banana, lemon and potato। Now question number 11, it says name the part of plant which produces food and name this process। तो इस क्वेश्चन में आपको प्लांट के उस पार्ट का नाम बताना है जहाँ पर खाना बनाया जाता है, और उस प्रोसेस का भी नाम बताना है जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स का खाना कहाँ बनाया जाता है? लीव्स में बनाया जाता है। सो आंसर विल बी लीव्स प्रोड्यूसेस फूड फॉर द प्लांट। लीव्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो प्रोसेस है जिससे कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। Now question number 12, in which part of a flower you are likely to find ovary। फ्लावर के किस पार्ट में ओवरी प्रेजेंट होती है? तो ओवरी प्रेजेंट होती है पिस्टल के अंदर। अगर हम पिस्टल का स्ट्रक्चर देखें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है, मिडल स्टाइल होता है, और जो लोअर मोस्ट स्वोलन पार्ट होता है वो ओवरी होता है। सो ओवरी इज फाउंड इन द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल। पिस्टल के लोअर मोस्ट पार्ट में पाई जाती है जो कि स्वोलन होता है, और पिस्टल का दूसरा नाम कार्पल भी होता है। Now question number 13, name 2 plants in which one has joined sepals and other having separate sepals। तो आपको 2 प्लांट्स के नाम बताने हैं जिसमें कि सेपल्स जॉइंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और 2 और प्लांट्स के नाम बताने हैं जिसमें कि सेपल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। सो फर्स्ट इज द प्लांट्स विद द जॉइंट सेपल्स आर टमेटो, चाइना रोज जिसको हम हिबिस्कस भी कहते हैं, देन दतुरा। इन सभी प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेपल्स जॉइंट होते हैं।
Now coming to the names of the plant with the separate sepals are rose, lotus and mustard. So with this we complete the exercise. I hope आपको समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.